Hello, students. In this class, we are going to understand what is searching. There are normally two types of searching. One is linear search, and another is binary search. So we'll start with a linear search. So let me make the concept clear. Linear is made out of the word line, और उसी से बना है ये linear. तो जब हम किसी चीज को लाइन बाय लाइन सर्च करते हैं तो वो लीनियर सर्च कहलाता है. बहुत आसान है. जैसे एक लिस्ट है हमारे पास और हमें एक नंबर ढूंढना है, सपोज कि 89. इस लिस्ट में 89 कहाँ पे है? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमारा जो की है जिसे हम ढूंढना चाहते हैं वो है मान लो 89. तो इसे की कहते हैं जो हम ढूंढना चाहते हैं. ये 89 कहाँ है भाई? तो हाउ डू वी एज ए ह्यूमन, हाउ डू वी डू? फर्स्ट विल सी लाइक दिस 78, नो, दिस, नो, yes, 8. It is in this row, row number 8, it is available, 89 is there. So this is how we found that the number 89 is found. So what we did, we were linearly searching it, starting from the very beginning, and was going one by one, and we encountered it and we found it. So this kind of searching is called linear search. No big deal. We normally do this. Now, if we have to find a number like 2, so let us start searching linearly. So 2, nowhere. 2 is nowhere. So 2 is not available in this list, not found. So very simple concept of linear searching. Let us now see it in a little programming way. So linear search is used to search a key element from multiple elements available. Linear search is less used today because it is slower than binary search. It is slower than binary search. Now, how it is and why it is slower, we will understand this. But there are only two types of searching, linear and binary. We are trying to learn by linear search. And of course, it is not so efficient and effective, but still it is there, so we need to learn it. It's very simple. The advantage of this search is it's quite simple. So what is the algorithm of it? Traverse the array. Traverse the array means, suppose this is an array of similar element. How many elements are there? In total, 21 elements are there. We traverse. Traversing means this, going through like this, traveling around. This. Match the key element with array elements. Now, if we have to find 89, what we were doing? We were matching this 89 with this, then this with, then this with, and like this. When we came here, then we found that yes, this is equal to this, and this is how this is found. So match the key with the this. This is the step 2 of the algorithm. Then what? If the key element is found, then return the index in which position it is. We return that it's in the 8th row outside. And if it is not found, then return -1 or say no, not found. Now let's try to understand this with the help of program. If you'll see this program from top to bottom like this, you may find it, oh wow, what is this? Not getting. But try to understand it line by line. It's a simple procedural program, and the class name is linear search example. The name of class is linear search example. Fine. Now what? Public static int linear search. You might say that public static void main we have seen. What is this? It's also a function. We are making a function. What is the name of function? The name of function is linear search. Try to understand. What kind of return is it going to give you? It is going to give you return integer type. And what? And what kind of arguments it has? It has two arguments. One is array itself. Another is the key, which we have to find. So we'll provide this function, the array. We'll provide the array. भैया, this is the array. इसमें आपको ढूंढना है. क्या ढूंढना है? ये वाला की ढूंढना है. ठीक है, ये ऐसा कुछ ये फंक्शन बन रहा है.
ये तो फंक्शन का प्रोटोटाइप है ना सिर्फ, कि ये इस तरह का रिटर्न होगा, फंक्शन का ये नाम होगा और ये इसका पैरामीटर होगा या आर्गुमेंट होगा। अब ये ढूंढेगा कैसे, यहां डिफाइंड है। दिस इज द मेन पार्ट, ओनली 3 लाइन्स, यस, नो बिग डील, लेट अस सी। यहाँ पे मेन यही समझना है आपको, मुख्य यही कोड है इस पूरे प्रोग्राम का, इसी को समझना है। आप में से ज्यादातर लोग इसे ऑलरेडी समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे हैं ध्यान से समझने का प्रयास करिए। एक लूप हम चला रहे हैं, माइंड इट कि हमारे पास एक एरे ऑलरेडी है जिसका नाम ARR है, इस वेरिएबल का नाम, एरे वेरिएबल का नाम ARR है। अब आपको अगर एरे नहीं समझ में आता है या एरे में कोई परेशानी है तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले एरे से रिलेटेड जो वीडियो है उसे आप देखिए, पहले उसे समझिए तब यहाँ पे आइए। तो हम एरे को ऐसे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो आई इंडेक्स वेरिएबल है हमारा, लूप वेरिएबल 0 से शुरू होगा क्योंकि एरे का इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। और फिर AR.length, ये एक स्टेटमेंट है जो आपको बतलाता है कि एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। हमारे इस उदाहरण में अब यहां देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, इसका काउंट एक्सेल आपको यहां दिखलाता है 21, यहां देखिए नीचे। तो हमारे इस एरे में जो हमने सैंपल के लिए लिया है 21 एलिमेंट्स है। तो जब हम ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता है तो ये 21 रिटर्न करेगा। अब इसका वैल्यू 21 हो गया, तो आई 0 से कहां तक चलेगा, लेस देन 21, यानी कि 20 तक चलेगा। तो 0 जो है सो पहला एलिमेंट को रेफर करता है और 20 जो है सो 21st एलिमेंट को रेफर करेगा, इसलिए ठीक है। तो एरे ये लूप कहां तक चलेगा, जितना एलिमेंट है हमारे एरे में उतना बार ये लूप चलेगा। और ये हम कैसे तय करते हैं, एरे का नाम डॉट लेंथ, ये स्टेटमेंट लिख के ऐसा होता है। एरे के टॉपिक में सब डिस्कस्ड है, आप उसे देख सकते हैं। आई प्लस प्लस सिंपली मीन्स कि एक एक करके आई का वैल्यू बढ़ेगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे बढ़ेगा। दिस इज द कर्ली ब्रेस and this is the curly brace of the for loop, not this. This is the curly brace of this if. Curly brace we can write this way also, but I prefer to write curly brace after the loop so that we could simply match it कि कौन सा curly brace किसका है। ये भी तरीका ठीक है, but I prefer that way of writing curly brace just down so that we could directly match this curly brace was for this and this is for that. तो अब इसमें एक कंडीशन है कि if AR equals key, so let us try to do one thing. इसको साइड बाय साइड हम लोग रखते हैं और इस कोड को यही मान लीजिए कि यही एरे है हमारा और यही इंडेक्स 0 है और लेट अस ये इंडेक्स है हमारा 20 तक, 21 एलिमेंट्स है मगर 20 तक इंडेक्स है। अब क्या है कि ARI, इफ ARI, AR हमारा ये है, ARI, आई का वैल्यू क्या है अभी फर्स्ट राउंड में, ये 0 है। तो एरे 0 कौन होगा, एरे 0 ये होगा, ठीक है 78। की का वैल्यू क्या है, ये मान लीजिए हमारा की है, हमें 89 ढूंढना है, तो की का वैल्यू 89 है। तो इफ ARI, यानी कि इफ ARI मतलब ARI यानी 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है जो कि 78 है, अगर वो की के बराबर होगा जो कि ये है 89, अगर दोनों इक्वल होगा तो क्या करना है, रिटर्न आई, आई का वैल्यू 0, यानी कि वो बताएगा कि 0th इंडेक्स पे वो जो हम ढूंढ रहे हैं वो है। बट इस केस में, पहले केस में क्या हुआ कि ये तो मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं भाई, ठीक है, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। आगे आया, इफ कंडीशन से क्रॉस किया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, तो इसको तो चलना कहाँ तक है, 20 तक चलना है ना। अभी आई का वैल्यू हुआ है सिर्फ 1, ये है 1, इंडेक्स 1, वो 63 है। फिर यहाँ मैच किया, क्या ARI यानी AR1, ये है AR1 जो कि 63 है, क्या वो की के बराबर है, क्या वो 89 है, नो। अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये फिर लूप रिटर्न के वापस मैंने लूप किया। अब की इसका वैल्यू हो जा रहा है 2, तो AR2 जो कि 52 है, क्या वो की के बराबर है, नहीं भाई नहीं है। तो फिर इस तरह से वो लूप करता जाएगा और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेगा
तो 89 मिल गया उसको। तो जब मिल जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, तो वो रिटर्न करेगा आई का वैल्यू क्या है 6, वही इंडेक्स 6। तो ये बताएगा कि भाई इज फाउंड एट इंडेक्स, जो भी उसका इंडेक्स है, मतलब 6 दिखाएगा, 6ठे स्थान पर वो है। तो इस तरह से हमारा लीनियर सर्च काम करता है, बहुत ही आसान। अगर कुछ हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलता है, सपोज हम 2 ढूंढ रहे हैं कि नहीं मिलता है, जो लास्ट तक नहीं है, तो अंत में -1 रिटर्न करेगा, और -1 रिटर्न करिए, या जो कुछ जो आप प्रोग्रामर के तौर पे आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सीधा बोलिए कि भाई नॉट फाउंड, या मिलता है तो बोलिए फाउंड। अगर आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करना है कि वो चीज कितनी बार मिल रहा है, तो यहाँ पे काउंटर लगा दीजिए, C = C+1 ऐसा। तो जितनी बार वो आपकी मिलेगा उसे, उतनी बार वो उसे गिनेगा, और लास्ट में रिटर्न करिए कि हाँ फाउंड एंड these many frequencies were there. So this is how linear search can be done. So copy this code or type this code and try it. But before this, better you understand array. So thank you, dear students.